ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ +1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਮੋਲ। 1 ਮੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਿਰਫ +1 ਲਈ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਇਹ 12th ਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਲੋਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 11th 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 10th ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। 10th 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 2 4 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਇ, ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਮੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਮੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਦਰਜਨ, ਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਦਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਦਰਜਨ ਕੰਟੇਨ 12 ਨੰਬਰ 12, 12 ਕਾਪੀਆਂ, 12 ਪੈਨਸਲਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 ਮੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ 6.022 into 10 raised to the power 23 of any particles, any type of particles। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ, तो तुही कहोगे 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। और यही चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈसेस ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। अगर मैं बोलांगा 1 मोल of N2 molecules, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਪ ਸੈਂਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ what is 1 AMU, 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਹੀ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ 1/12 ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਆਓ ਦੱਸਣਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ 6 ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਔਰ 6 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਹ ਸਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ।
ठीक है, इन द 3 डायमेंशनल पाथ आपां नूं पढ़ना बड़ा वधिया चैप्टर है। सैकंड यूनिट जिहड़ा वा इहदी स्ट्रक्चर ते एक्सप्लोर्ड है। चलो इत्थे आए ने वापस। ते की मैं क्या कि एक एटम कार्बन दे 6 इलैक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंदे आ। जे गल करिए साडे कोल प्रोटॉन दे मास दी, ते साडे कोल प्रोटॉन दा जेहड़ा मास हैगा मैं पहला भी दस्सिया सी 1.67 into 10 ते मैं की गल करन डे, हाँ कार्बन दे विच 6 इलैक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है ते 6 न्यूट्रॉन है। जे गल करिए इन्हां दे मासिस दी, रिस्पैक्टिव मासिस दी, ते इलैक्ट्रॉन दा बेटा मास हुंदा 9.1 into 10 raised to the power -27 ग्राम। प्रोटॉन का मास हैगा 1.6 into 10 raised to the power -24 ग्राम। ते न्यूट्रॉन का मास भी आलमोस्ट सेम ही है। न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन मास वालों एक बराबर हुंदे ने। जे हुण ये सारे मासां नूं देखिए ते जिहड़ा इलैक्ट्रॉन का मास है ना, वो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास के हिसाब नाल बहुत घट है। जो दोनों के मास के हिसाब नाल इहदी वैल्यू बहुत घट है तो यह इस हिसाब नाल नेगलीजिबल हो गया। जो आपां कार्बन का मास कड्ढण की गल करते हैं तो इलैक्ट्रॉन का कोई भी मास की हिस्सेदारी इहदे च रहिंदी नहीं है। देयर इज नो पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन का मास बहुत घट है बेटा, बहुत घट है। सो इस करके साडा इंटायर कार्बन का मास कादे बराबर आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन 6 प्रोटॉन एंड मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, यानी कि 6 प्लस, क्योंकि दोनों मास इक्वलेंट है। 6 प्लस 6 12, चाहे प्रोटॉन कह लो चाहे न्यूट्रॉन कह लो, इन्हां दा जिहड़ा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जिहड़ा मास है उन्होंने ही एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता, यानी कि 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम नू एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। यानी कि कार्बन का मास क्या आ गया? 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो जे तुसीं इत्थों ही एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन कढदे हो तो निकलदी नहीं। एक एटॉमिक मास यूनिट की होया? 12 इधर आ गया, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। दैट्स इट। जो तुसीं डेफिनेशन पढ़ी आ एटॉमिक मास यूनिट की वही तो है। वैसे एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन जी सब तो पुरानी है वो हाइड्रोजन नाल बनाई गई है, बट जो हुण चलती है साडा यूनीवर्सल जिहड़ा एलीमेंट है वो कार्बन है। तो इस करके आपां कार्बन के हिसाब नाल एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन कड्ढी है कि द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम जिहड़ा वा वो एक एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, करो जरा इनू नोट ते करिए अगों शुरू, काम बड़ा पिया जे। हाँ जी, ते पता चल गया एक एटॉमिक मास यूनिट। ओके, लो मैं हूं थोनों अगों करवाना। चलो यदि लोड पैनी है इस करके रहने दो। मान लो आप पता करना मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इन्हां दा मास पता करना। ठीक है, असल दे विच 6.022 into 10 raised to the power 23 की है, असल च एक मोल ही है। ये देखा जाए तो कह रहा एक मोल जिन्ने भी एटम्स ने कार्बन दे ओदा मास दसो। ठीक है, ते सानू पता मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपां कड्ढिया होने जिन्हों आपां 12 AMU किया, या 12 इंटू AMU की वैल्यू कितनी? 1.67 इंटू 10 raised to power -24 ग्राम्स। ठीक है, तो जो आपां इन्हां एटम्स का मास पता करना, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम्स, फिर मल्टीप्लाई कर दो भाई 12 1.6 इंटू 67 इंटू 10 raised to power -24 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, पीछे ग्राम लगा दो। हुण जो तुसीं पास आउट करना ना पूरी तरह कढ़ना तो तुहानूं की मिलना वा? यह वैल्यूज जिहड़ियां वा यह खत्म हो जानियां, इहदी इक्वलिटी आनी 1 ते
यह मिल जाना तुहाडे कोल 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम्स का जिहड़ा मास आया वो 12 ग्राम है। इनू तुसीं कार्बन का मोलर मास या मोलीकुलर मास भी कह सकते हो, जो तुहाडी बुक्स में लिखा होया, ठीक है, या फिर इनू तुसीं ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हो, ग्राम एटॉमिक मास फॉर द कार्बन। इनू मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल नाल भी तुहानूं दसदा। मान लो ऑक्सीजन ही, अगर ऑक्सीजन के एटम का मास कढ़ना, ऑक्सीजन में की हुंदा 8 इलैक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। इलैक्ट्रॉन का पहला आवांगी नगलीजिबल मास है, इनू आपां काउंट नहीं करते। प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन ये दोने इक्वलेंट मास दे आ, 8 ते 8 बन गए 16, ते प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन 8 एंड 8 एंड 16, ते प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम मास, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, दैट इज 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। यह बन गया ऑक्सीजन का मास फॉर वन एटम, फॉर वन एटम। और अगर ये वांग ही तुहाडे को मास ऑफ 6.0 मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कढ़ना पै गया, थे वो क्या आ गया, वो आ गया तुहाडे कोल मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। डिवीजन की मतलब कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके एक बार फिर तो आ गया 16G, यानी कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास भी बोलते हैं, नवी टर्म आई मोलर मास। इट मीनस कि किसी भी एलीमेंट का जिहड़ा एटॉमिक मास है वही ओदा ग्राम एटॉमिक मास है या वही ओदा मोलर मास है। यह सारिया टर्म्स मैं तुहानूं डेप्थ तो करवा रहा या तुसीं इहनूं बुक तो करते हो, इन्हें स्लोली रिवाइज करके फिर तो देख लो, ठीक है, करो इन्हें नोटिफाई करो तो मतलब, ठीक है। ते आओ थोड़ा होर फार्मूले जनरेट करिए। Find the number of moles of oxygen atoms present in 64 ग्राम of oxygen। हाँ जी, मास दिता ऑक्सीजन का 64 ग्राम, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ पता की करना वा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ पता करना कि 64 ग्राम ऑक्सीजन का जिहड़ा मास है ਉਹਦੇ ਚ किन्ने मोल्स मिलते हैं, ठीक है। सिंपली आ सानू पता कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन काहदे बराबर हुंदा, 1 मोल के बराबर हुंदा, ठीक है। जां हुण कह लो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम दे, ठीक। अगर 16 ग्राम दे विच 1 मोल होया ते 1 ग्राम च कितना हो गया, 1 ग्राम च हो गया 1/16, ते 64 ग्राम विच कितना आया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। इनू तुसीं डिवाइड करोगे, यह आ गया देखो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली गिवन है ना, सानू पता कि 16 ग्राम जी ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की है 16, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/16। हुण की कीता आपां करना 64 ग्राम सा, ते इनू आपां यूनिटी मैथड ही बोलते हैं, ठीक है। कि कोई चीज़ है 15 रुपए दे विच साडे कोल
15 रुपए ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? 15 ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੀ 25, ਇੱਕ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 25 ਬਟਾ 15, ਤੇ 50 ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 25 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਫॉर फाइंडिंग ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ n ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਵਨ ਮਾਸ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ग्राम एटॉमिक मास। यही तो किया तुम, गिवन मास 64 ग्राम सी, डिवाइड कर देना किया 60 नाल। अगर यदि बजाय क्वेश्चन चेंज हो जाता और अगर आ जाता तुहाडे कोल 72 ग्राम ऑफ कार्बन कह देंदा, या मान लो 108 ग्राम ऑफ कार्बन कह देंदा, 108 ग्राम कार्बन च दसो कि किन्ने मोल आते हैं, तो फिर की हो जाना ही 108 डिवाइडेड बाय 12 हो जाना ही, क्योंकि कार्बन का मास ही तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਲ ਨਿਕਲ ਆਣੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਮੋਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਇਟਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਣਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। करो इनू तो मतलब नोटिफाई। हाँ जी कर लिया नोट? चाहिए ला के देखिए वाला अलग अलग वैल्यूज देते हैं फार्मूला मोल्स कढ़न लई। नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंडिंग वास्ते फार्मूला यूज करते हैं। कोई लगा लो, कोशिश करो कि होल नंबर निकले। देखो अलग अलग तरीके होंगे हैं न्यूमेरिकल्स दे। मैं मोस्टली स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ टिल द डेरिवेशन तक जाओ, डेरिवेशन ਦਾ एंड रिजल्ट याद रखो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कशन करो। डिस्कशन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ खुद अपना न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करो। खुद देखो कि ਇਹਦੇ 'ਚ वैल्यू गिवन है, ਇਹ नहीं गिवन है, मिसिंग है। अगर ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ वैल्यू पास आउट करोगे आपे अपने दिमाग चों किसी न्यूमेरिकल च दिते हुए एक्सप्रैशन चो, न्यूमेरिकल च नहीं डेरिवेशन दी एंड दे जो भी एक्सप्रैशन आंदा ਉਹਦੇ ਚੋਂ वैल्यू पास आउट करोगे ਤੇ वैल्यू पास आउट ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल कोई भी आ जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ वैल्यू ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 28 grams of nitrogen contains number of moles। आप पता करने नंबर ऑफ मोल्स पता करने 28 ग्राम नाइट्रोजन के दिता, ठीक है। देखो ये सारे फार्मूलियां दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। एटॉमिक मास कितने इंपॉर्टेंट है? पहले 30 एलिमेंट्स जेडे इंपॉर्टेंट है। पहले 30 नहीं कह सकते, पहले 40 है, पर 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ कुछ एलिमेंट घट वध जाते हैं, इस करके नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। n गिवन मास कितना वा 28 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 14। जानबूझ के मैं होल नंबर रखा, आ गया 2 मोल्स। 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर गिवन है, मोल्स पूछता पाया, ठीक है। शॉर्टकट से करवा रहा, टाइम बचाने मोल्स पूछता पाया।
तो मोल्स की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n, गिवन मास 64 ग्राम, सल्फर 32, ठीक है, यह आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 मोल्स। इसी तरह तुम कोई भी एलीमेंट होएगा ਉਹਦਾ मास गिवन है, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਾਫੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ हाइड्रोजन ही है, ए होया कल्ला एटम, ते अगर मैं H2 लिखता तो की हो गया, ताड़ा मॉलिक्यूल हो गया H2 मॉलिक्यूल। फर्क की पाए ना, द डिफरेंस इज ओनली वी हैव टू डिवाइड विद मॉलिक्यूलर मास। इन दिस केस मॉलिक्यूलर मास H2 दा जेड़ा वा वो चेंज हो जाना, H2 दा मॉलिक्यूलर मास जेड़ा वा 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 × 1 ए आ गया 2 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हाइड्रोजन दे 2 एटम हो गए ना। जे कोई कह देंदा कि दसो कि 22 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स दे विच, H2 मॉलिक्यूल्स दे विच तुसी मोल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर उत्थे नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला चेंज हो जाना, उत्थे विच ऊपर क्यों ही रहना गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 22 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 2 11। एक एग्जांपल और रह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 64 grams of oxygen molecules। एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स देता, नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फार्मूला वही रहेगा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ते ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हैगा O2 दैट इज 16 × 2 32, इथे आ गया 32 ते मोल्स आ गए ਤੁਹਾਡੇ को 2 मोल्स। इजी है ना, कोई टिपिकल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलांगे, टिपिकल तक भी पहुंचांगे, ठीक है। काली ना करियो, कई बार होंदा कुछ स्टूडेंट बोलते जी ऐ ते आंदा आंदा, ठीक है मैनू पता, मैं तो ज्यादा बड़ा करवा सकदा, पर स्टेप बाय स्टेप चलोगे आराम ना चीज आएगी। ऐ ते आ गया ਤੁਹਾਡੇ को कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जेडे ने वो इको तरह के मॉलिक्यूल है। मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जांदा, मैं थोड़ा जिहा क्वेश्चन होर चेंज कर देना, find the number of moles in 54 grams of वाटर मॉलिक्यूल। इस केस में की कर दिता, उन्हें क्या 50 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल से मोल्स दसने। फार्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो तुहानू मॉलिक्यूलर मास कढ़ना आना चाहिए। आज की प्रैक्टिस शीट दे विच मैं तुहानू मॉलिक्यूलर मास भी देने हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का H2O दा जो भी एटॉमिक मास यूनिट है उन्हां दे कोएफिशिएंट ना जो उन्हां दे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दा एटॉमिक मास यूनिट 1 है, मल्टीप्लाई विद 2, ऑक्सीजन दा 16 है, मॉलिक्यूलर मास टोटल निकलिया 18, यानी कि गिवन मास सी 54 डिवाइड बाय 18। इन्हों कटिंग कर लो, ए तुहाडे को आ गया 3 मोल्स। सो इस तरह तुसी गिवन मास तो नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े आ वो कढ सकदे हो।
हाँ जी कि की होया फिर कि अगर तो तुसी एक एटम्स की अगर गल करते हो, अगर गल तुम करते हो एटम्स की कि तुहानू मास ऑफ एटम्स दिता वा और तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पता करने हैं तो तुहाडे को फार्मूला लगेगा गिवन मास जो भी एटम का दिता डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और अगर गल करते हैं असी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स के केस में बच्चा गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल की गल कर ली H2N2O2, अगर तुहाडे को मॉलिक्यूल आ गया H2SO4 C6H12O6 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मॉलिक्यूल्स ने, अगर यह मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स में सब तो पहला तुहानू मॉलिक्यूलर मास कढ़ना पैना वा। ठीक है, समझ आ गई। लो एक सवाल होर करते हैं, थोड़ा जिहा गांह वधदे हैं हौली हौली, सारे प्रकार दी सारी टाइप्स कंप्लीट करनी आपां। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present in 24 ग्राम ऑफ कार्बन। लो जी हुण उन्हें मोल नहीं पूछे, मोल नहीं पूछे है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले। नंबर ऑफ एटम भी पूछे भावें तां भी तुहानू नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने ही पैने। सो शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू फिर वही गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास 24, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12। ठीक है, यह आ गया तुहाडे को 2 मोल। कितने मोल आ गए? 2 मोल। और सानू जनरली पता वा 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. 2 mole contains multiply with 2 simply। ठीक है, सो पहला तो ही नंबर ऑफ मोल्स कटोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कटन तो बाद एक मोल दे विच इन्ने एटम्स ने, 2 मोल च किन्ने आ गए। एलिमेंट चेंज होंदे रहणगे, मॉलिक्यूल चेंज होते रहेंगे। इजीली तुम सारा कुछ फाइंड आउट करोगे। टिपिकल एग्जांपल करवाना वा, करो तुम नोटिफाई नो वेल। हाँ जी ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है साडे को एग्जांपल थोड़ी जी लेंथी है पर ये बड़े कॉन्सैप्ट जो क्लीयर हो जाने हैं। ठीक है, आओ देख रहे हैं। फाइंड इन 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। H2SO4 बड़ा सुनिया तुम 10th च, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ਇਹਦਾ पता की करना वा, देख जाओ आप ਇਹਦੇ पता करना वा। पहला मोल्स ऑफ H2SO4, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ atoms of sulfur, moles of hydrogen, atoms, moles of hydrogen atom, gram atoms of hydrogen और mass of sulfur atom
एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है जी, सारा कुछ इको जी और सारे कुछ ही तो क्लियर हो भी जाना। करिए शुरू जी। मोल्स फाइंडिंग का फार्मूला की ही, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। आ गया ना, मैं क्या ही ना एग्जांपल H2SO4। मॉलिक्यूलर मास कर लेने हैं, गिवन मास 98 है, लिख लिया। मॉलिक्यूलर मास है H2 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन है 16 इंटू 4 64 98। यह आ गया था देखो 1 मोल, पहले का आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 मॉलिक्यूल दे कितने हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल दे, गिवन मास 98 ही, मॉलिक्यूलर मास भी सेम आ गया, 1 मोल आ गया। हुण की कहता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। देखो फार्मूले दे विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम अगर देखिए, क्योंकि साडे कोल H2SO4 दा 1 मोल आया और उस 1 मोल दे विच सल्फर भी 1 ही है, इस करके तुहाडे कोल सल्फर भी 1 मोल ही है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ एटम सल्फर जो 1 मोल दे विच पार्टिकल दी वैल्यू है, यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स। ठीक है, सौखा ही है, कुछ नहीं होगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हुण हाइड्रोजन की गल कर लिए, जे उन्हें क्या हुंदा कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो फिर आपां H2 ਨੂੰ 1 काउंट करना है। H2SO4 ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन एटम 2 टाइम्स है, H2 है, ਇਹਦਾ मतलब है होया कि H2 है, इट मींस इट कंटेन्स 2 मोल, क्योंकि 1 मोल है कंप्लीट ते हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, 2 मोल साडे हाइड्रोजन दे आ गए। ग्राम ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ही ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कह लो या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कह लो, ए सेम ही जे, कोई फर्क नहीं है, डिट्टो सेम है। ठीक है, ए सेम ही है। हुण वारी आंदी है तुहाडे कोल मास ऑफ सल्फर एटम। हुण हमने आपां गल कीती है कि साडे कोल फार्मूला की हुंदा, फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1 है सल्फर एटम का, गिवन मास यही पता करना, डिवाइड बाय एटॉमिक मास यूनिट सल्फर का 32। ਇਹਦਾ मतलब होया कि मास कितना आ गया 32 ग्राम, सल्फर एटम का मास आ गया 32 ग्राम। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फिर एटम, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, गिवन वैल्यू 1 मोल दी है, पर ऑक्सीजन ਉਹਦੇ ਚ 4 टाइम्स है, यानी कि 4 मोल्स आ गए कंटेन इन द योर फॉर्मूला। ठीक है, सो यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ करी जाओ नोट, क्योंकि मैं तुहानू फिर कहा कि यह जिहड़ा साडा मोल कॉन्सैप्ट है स्टैप बाय स्टैप दा वा, जिद्दां जिद्दां तुहानू यह चीज़ समझ आई जाएगी, मैं तुहानू इहदे हर एक चीज़ नाल रिलेटेड एक वर्कशीट देनी है। ठीक है, उन्होंने तुसीं सॉर्ट आउट करना, तां जो कि आपां अगर अज मॉलिक्यूलर कॉन्सैप्ट जिहड़े ने तुहाडा जिहड़ा मोल कॉन्सैप्ट है कंप्लीट कर लैंदे आ, ते तुहानू यह बेनीफिट मिलना कि अज तो बाद कदी भी किसी भी फॉर्मूले च तुसीं रुकना नहीं है, मैं सिर्फ तुहानू उहदा शॉर्टकट बोलना वा। ठीक है, करो छेती करो नोट। कर लिया। जी वधिया जी काम। नेक्स्ट है फाइंड द mass of hydrogen atoms present in 32 grams of methane। CH4 फॉर्मूला होता जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला अल्केन पढ़िया तुम। हाँ जी, 32 ग्राम्स मीथेन है तुहाडे कोल, उहदे विच तुसीं पता करना कितना हाइड्रोजन
एटम्स दा मास है। ठीक है, कढ़ना तो मास है पर फिर भी नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने पैने तुहानू हाइड्रोजन एटम दे, क्योंकि फार्मूला फिर वही लगना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आओ देखते हैं। मोल्स ऑफ CH4 पहला दिया कटो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या आ गया 32 ते मोलर मास 12 416 करके देख लो, ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 2 मोल्स आ गया। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ 1 मोल contains 4 moles of hydrogen atoms, क्योंकि 4 टाइम्स है ना, 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ 2 मोल ਨਿਕਲੇ मीथेन ਦੇ। सो 2 मोल contains 2 moles of CH4 contains 8 moles निकलेंगे, 2 टाइम्स होए 2 टाइम्स होए मास ऑफ H एटम तो ही फाइंड आउट करना। तो फार्मूला वही लग गया N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल 8, गिवन मास ਇਹ ਤੇ पता करना, तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन होंदा 1। सो मास क्या आ गया 8 इन ग्राम। इट मीन्स तुम इस फार्मूले तो मास नू फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कट सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स भी कट सकते हो। ठीक है, करते जाओ दबा दब। हाँ जी, कर लिया जी नोट। सो ऐ ते हुई तुहाडे कोल गल एलिमेंट्स दे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दी मॉलिक्यूलर मास। इन केस तुसी अगर गल करदे हो गैस दी, आइडियल गैस दी, ते नंबर ऑफ मोल्स कड्ढन दा इन केस ऑफ गैसेस एक होर फार्मूला वा, इन केस ऑफ गैसेस ओनली। वो की है फार्मूला मैं बाद चो दसदा, उस तो पहला दस देना फॉर एनी गैस एट STP conditions its 1 mole always contains 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम। मतलब की है कि कोई भी गैस है, चाहे वो H2, N2, O2, CO2, HCl कुछ भी है, STP कंडीशंस दे उत्ते, STP कंडीशंस तुसी बार-बार पढ़ियां, STP कंडीशंस होंदियां स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। टेंपरेचर तो STP कंडीशंस की गल करते पे ही, STP कंडीशंस की होंदियां बेटा, STP कंडीशंस होंदियां स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर मतलब जदों टेंपरेचर 273 केल्विन है ते प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होए ते आपां उन्हां नूं STP कंडीशंस करने हैं। सो इस स्टेटमेंट की कह रही है कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस है जे वो अपनी STP कंडीशंस है ते ओदा 1 मोल जेड़ा वा ओ 22.4 लीटर 22.4 लीटर जेड़ा वा बाय वॉल्यूम हुंदा। सो एवरी गैस हैव कंटेन 22.4 लीटर, इट इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के बराबर होएगा। लेट मान लो एक एग्जांपल दे देना, फॉर एग्जांपल है, या मान लो इतने मैं क्वेश्चन बना देना, एग्जांपल छड्डो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ O2 गैस। O2 गैस दे 3 मोल दा वॉल्यूम पता करो। सानू पता 1 मोल O2 गैस जो साडी स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ अनुसार 1 मोल O2 गैस ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ 22.4 ਲੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 मोल ਦਾ। ਸੋ 3 मोल ਦਾ O2 गैस ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3 × 22.4
लीटर, दैट्स इट, ये च कोई भी नहीं है। ठीक है, सो जिथे तुहाडे कोल फार्मूला यूज होण दिया ही इन केस ऑफ मोलर मास या गिवन मास, वो ही गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। इन केस ऑफ गैसेस नंबर ऑफ मोल्स कड्ढण दा फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया ते की आया, गिवन वॉल्यूम ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 22.4 ਜਿਹਨੂੰ 22.4 ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, 22.4 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, क्योंकि देखो फार्मूले जिन्ने मर्जी तुसी याद कर लो बेटा, फार्मूले कभी मुकने नहीं है, पर जो तुम फार्मूले नू एग्जीक्यूट करते हो अपने मतलब ना कि आप फार्मूला देखिया, फार्मूला बना के कोई क्वेश्चन बना दिता तो तुम इजीली उन्होंने कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन बना दो, फॉर एग्जांपल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया for having volume कितना वा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तो की पता करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ते इन केस ऑफ गैस फार्मूला की है नंबर ऑफ मोल्स कट्टन दा, नंबर ऑफ मोल कट्टन दा फार्मूला वा गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जिहड़ी है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इहनूं तुहानूं कड्ढना नहीं पैंदा जिद्दां तुहानूं मोलर मास कड्ढना पैंदा है। गिवन वॉल्यूम की है 5.6, मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, इहनूं भी डेसीमीटर क्यूब च तुसीं लिख सकदे हो। अगर तुसीं इहदी वैल्यू कटिंग करदे हो ते कटिंग करके इहनूं तुसीं करो कर सकदे हो। मैं पाउज करदा 2 मिनट लई, रीजन आ गई 0.25 मोल्स करके देख लो, सेम आएगा। ठीक है, 0.25 मोल्स। सो इस तरह तुम नंबर ऑफ टाइम्स तुम नंबर ऑफ मोल्स जेडे वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, करो दबा दो। ठीक है, तो हुण क्या है, हुण इस तरह की आ गया तुहाडे कोल कि आपां इत्थों नेक्स्ट सम लैंदे हां, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस। तुसी पता करना वा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कादे तो 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस देती है। आप की करांगे, पहला फॉर्मूला लगावांगे, मोल कटांगे, मोल दे विच जो भी मोलर वैल्यू हुंदी है उहदे नाल मल्टीप्लाई करके आप कटांगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो सिंपल ही है, कोई ज्यादा टिपिकल सम नहीं है। n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। फार्मूला मैं एवरी टाइम तां लिखदा पिया कि तुहानूं याद हो जाए। गिवन वॉल्यूम 11.2 डिवाइड बाय 22.4, इन्हों तुसीं कटिंग करोगे एग्जैक्ट हाफ है 0.5 मोल्स आ गया। हुण बेटा उन्हें तुहानूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हुंदा ते हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कड्ढने कोई वो नहीं मल्टीप्लाई करनी ही तुसीं नंबर ऑफ मोल्स ना। पर देखो H2 गैस दे विच एटम्स की गिनती डबल है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मोल कितने हो गए, हाइड्रोजन एटम्स मोल हो गए 2 टाइम्स ऑफ 0.5, यानी कि 1 मोल आ गया तुहाडे को हाइड्रोजन एटम्स का, क्योंकि 2 टाइम्स है H2 है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की आ गए, सानू पता वा कि 1 मोल दे विच हाइड्रोजन एटम दे कादे बराबर हुंदा 1 मोल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 into 10 रेज़ टू द पावर 23। इट मींस 1 मोल की जो भी वैल्यू है। हुण इहनूं न्यूमेरिकल नूं अगर टिपिकल मोड ते लै जन्ने ते होना की सिर्फ वैल्यूज चेंज होनी है, इहदे लीटर की वैल्यू चेंज कर देगा।
ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਐਟੋਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ 11th ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ।